Hello, bankers. A very, very good evening to all of you. Welcome back. Welcome to JIB CIB Prep. Guys, in this particular session, we are going to discuss our unit number 27, which is all about working capital management. Okay, very small unit, and you can expect half marks to 1 marks question based on this particular unit, even in PPB also. Okay, like what type of question you may face from this particular unit, as well as case studies that we are going to discuss in this particular session. Okay, so I hope you guys have gone through the concept class of this particular unit as well. So module C, and today we are going to talk about the second last unit of uh, AFM module C, which is working capital management. Then one more unit, and we will be done with the our module C as well, right? So, guys, if you talk about the working capital management, it includes basic introduction. What is working capital management and working capital cycle? So, basically, it is all about the kind. It is generally known as now in today's world, it is called runway. So how a company is going to meet their short term obligations. Okay, so that means how we calculate it. Your If you talk about the working capital ratio or net working capital ratio, it is current asset divided by current liabilities, and an ideal ratio should be in between 1.2 to 2%. Okay, then we have current asset of the firm, which we have already discussed. Sources of finance for current asset, that is also known as current liabilities. Working capital assessment by bank. Comparison of time methods of assessment. That's it. Okay, so these are the subtopics which are generally part of this one, and with the help of a set of around 30 to 30 questions, we are going to make our understanding based on this one. ठीक है, अगर आप लोगों ने इसका कॉन्सेप्ट वीडियो नहीं भी देखा है तो भी आपका इस पर्टिकुलर सेशन से ही आपका ओवरऑल कवरेज हो जाना है. ठीक है, कैसे होगा, स्टार्ट करते हैं विद वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. So first question on your screen, guys, quickly go through the question. A company is struggling with liquidity due to a large proportion of its working capital being tied up in illiquid asset. Which component of working capital is most likely causing the issue? So क्या हो सकता है, inventory can be one issue here. So they have like current asset in their hand, like जैसे हमने एक रेशियो एनालिसिस के अंदर एक रेशियो पढ़ा था, दैट इज नोन एज क्विक रेशियो, विच इज ऑल्सो नोन एज एसेट टेस्ट रेशियो. सो हाउ वी कैलकुलेट क्विक रेशियो? Quick asset divided by current liabilities. Team, how we calculate quick asset? So it is current asset minus inventory minus prepaid expenses. So these are two component of your current assets, which are hard to, or they are like not kind of things which you can easily convert it into cash. ठीक है, inventory है तो उसको selling में time लगता है. Prepaid expenses which we have already paid the rent and all advance salaries and all. ठीक है, so account receivables, no. Cash and equivalents, inventory will be right answer. ठीक है, accounts payables which is your current liability. ठीक है, so what will be your correct answer? आपका inventory will be right answer for this one. Why inventory? Because it is like it follow a process. Like first that inventory we have to convert it into sale, then it will be sales receivables or bills receivables. तो उस process में ना थोड़ा सा time लगता है. ठीक है, so you cannot easily convert that particular one into cash. हाँ, you have one option or alternate for this. You can take cash credit against these particular inventories. Okay, so inventory is considered the most illiquid component of working capital. Unlike cash or account receivables, which can be quickly converted into cash, inventory relies on market demand and consumer preferences. If a company cannot sell its inventory in a timely manner, so it faces liquidity issues, leading to a potential short-term finance distress, or while the जो आपके पेबल्स हैं उनको आपका पे करने में इश्यू आएगा. ठीक है, so working capital cycle, this was the cycle which we have discussed in our concept classes also. ठीक है, so how this cycle generally work? So it start with, let's say we have cash. With this cash we will like purchase raw material, and we will convert that particular raw material into finished goods, that is equal to inventory. Okay, now like that inventory get converted into finished good, then we will sell that particular one.
we'll have account receivables and then it will be again converted into cash. अब देखो क्या होता है ना, like we have two side of this particular chart, ठीक है. जैसे क्या होता है, whenever we purchase raw material, so we generally purchase on credit, ठीक है. जो raw material हम लोग खरीदते हैं ये हम आपका credit में खरीदते हैं, ठीक है. So you have to design these particular things. कैसे? जैसे कंपनी ने आपका क्रेडिट पे खरीदा एंड लेट्स से दे हैव अ क्रेडिट पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, ठीक है. जो भी आपके वेंडर्स हैं उनसे उन्होंने इसको आपका दे हैव परचेज फॉर 3 मंथ्स, ठीक है. नाउ विद इन लेट्स से विद इन लाइक दिस इज द टाइम विच इज टेकिंग 1 मंथ. जो प्रोडक्शन टाइम है दैट इज 1 मंथ, ठीक है. सो वाइल यू विल मैनेज योर आफ्टर सेल, व्हेन यू मैनेज दिस पर्टिकुलर लेट्स से इट इज अगेन टेकिंग 1 मंथ, ठीक है. तो एंड यू हैव अ like accordingly you have to plan your account receivable to cash 1 month, okay. So we have maximum 1 month time, because after 1 month time we have to make payment also, because it is already done with like 1 month, आपका 2 month and 3 months, ठीक है. तो जो कंपनीज अपना पेबल्स और रिसीवेबल्स के अगेंस्ट या उनके लिए जो पॉलिसीज आपका बनाते हैं, क्रेडिट पॉलिसीज, सो एट द टाइम ऑफ पेबल इट विल बी हायर सेट, क्योंकि जो हमारा रॉ मटेरियल है वी विल कन्वर्ट इट इनटू फिनिश गुड, देन वी विल सेल इट इन द मार्केट, एंड जिनको भी हमने बेचा है दे विल आल्सो आस्क फॉर सम टाइम, ठीक है. सो दिस इज द साइकिल व्हिच वी हैव टू take care while we make these kind of policies, ठीक है. So working capital management require monitoring a company's assets and liabilities to maintain sufficient cash flow to meet its short-term obligations or operating cost, like जैसे आपका रॉ मटेरियल है या फिर आपका बिल्स पेबल्स हैं या फिर आपका सैलरी, रेंट, यूटिलिटी एक्सपेंसेस और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑफ दैट पर्टिकुलर बिजनेस, ठीक है. यूजुअली if you talk about the current liabilities, so liabilities which are payable within 12 months, ठीक है. तो उन 12 मंथ्स की जो ऑब्लिगेशंस है उनको पे ऑफ करने के लिए हमें उसी तरीके से अपने जो इनफ्लोज हैं, कैश इनफ्लोज, उनको प्लान करना होता है. दे आर जनरली नोन एज करंट एसेट. करंट एसेट मींस जिनके बेनिफिट आपको 12 मंथ्स के अंदर मिलेंगे. इट कैन बी कैश और इक्विवेलेंट्स और बिल्स रिसीवेबल्स, ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इन्वेंट्री. तो इनमें से इन्वेंट्री और प्रीपेड ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम टेकिंग होते हैं, बिकॉज प्रीपेड यू हैव ऑलरेडी पेड और इन्वेंट्री को कन्वर्ट करने में कई बार टाइम लग जाता है, ठीक है. सो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कैन इंप्रूव अ कंपनीज कैश फ्लो मैनेजमेंट एंड अर्निंग क्वालिटी by using resources efficiently, as I discussed with that particular charge, ठीक है. So components आपका क्या होते हैं? Basically it is lies around the current asset and current liabilities, ठीक है. So more important when considering working capital management, so basically these are all current asset and all current liabilities. तो जो हमारी जो liabilities हैं उनको हमें pay off करना है. So for that sake we will use the current asset, ठीक है. Next one, very important question guys, you can expect this type of question for 1 marks in your upcoming examination. So a company has following financial information: their current asset 2 lakh, their current liabilities आपका 1.2 lakh, ठीक है, डॉलर. What is company's working capital ratio first? What does it indicate about the financial health? This we have already discussed in our ratio analysis also, right? So first you have to calculate working capital ratio. So now how we calculate working capital ratio? Working capital ratio is equal to current asset divided by current liabilities. That means 2 lakh divided by 1.2 lakh, so which is equal to कितना होता है? Around 1.6666 ऐसा आपका, ठीक है. तो ये आपका हो जाएगा पहला, ठीक है. So this is your first one, ठीक है. This is your current, like the current or the working capital ratio of this particular company is 1.7 आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है. 1.67 सॉरी, ठीक है. So 1.67:1 is the, मतलब सिंपली अगर मैं इसको इंटरप्रेट करता हूं तो अगर इनके पास इफ दे हैव टू मेक पेमेंट फॉर 1 रुपीज अगेंस्ट दे हैव 1.67 रुपीज, ठीक है. मतलब 1 रुपए की लाइबिलिटी है उनके ऊपर, तो उनके पास 1 रुपए 67 पैसा उनके पास क्या है? आपका एसेट, करंट एसेट है, ठीक है. सो नाउ द क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया. व्हाट डज इंडिकेट अबाउट द फिनेंशियल हेल्थ, ठीक है. सो मैंने अभी आपको कुछ देर पहले क्या बताया था? अ गुड करंट रेशियो और नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो इज आपका इन बिटवीन 1.2 टू 2 आपका, ठीक है. ये एक सही रेंज आपका माना जाता है, ठीक है. सो इस रेंज के बीच में आपका होना चाहिए. सो व्हाट विल बी योर करेक्ट आंसर? 1.67 आइडियल वर्किंग कैपिटल रेशियो, बिकॉज
दे आर इन बिटवीन दिस, ठीक है, वो क्या है आपका इन दोनों के बीच में, ठीक है. सो लाइक समटाइम लेट्स से देयर इज अ कंपनी, वो इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन दे सकता है, कंपनी ए जिसका नेट वर्किंग कैपिटल ratio is suppose that let's say it is 1.5, कंपनी बी जिसका आपका है सपोज दैट 0.5, कंपनी सी आपका जिसका है सपोज दैट 10, ठीक है. तो इन तीन कंपनीज में से सबसे अच्छा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट किसका है, ठीक है, विच कंपनी इज फॉलोइंग द बेस्ट मेथड फॉर देयर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. सो व्हाट विल बी योर करेक्ट आंसर, ए विल बी योर राइट आंसर, ठीक है. रीजन बीइंग व्हाई नॉट डी, सी, फर्स्ट विल टॉक अबाउट सी. देखो क्या है ना, देयर इज सम इनएफिशिएंसी इन द मैनेजमेंट ऑफ कैश, ठीक है. उनको लेट्स से दे नीड 1 रुपी टू मैनेज देयर ऑब्लिगेशन, दे आर कीपिंग 10 रुपी, ठीक है. अब ये 1 रुपी को आप 1 करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ 1000 करोड़, ठीक है, समझ रहे हो, 100 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, 1000 करोड़ रुपीस आइडियल रखा हुआ है, ठीक है. सो दे आर मिसिंग द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन दैट पर्टिकुलर केस, इन केस ऑफ सी. इन केस ऑफ बी दिस इज आपका डेंजरस बिकॉज दे हैव रिमेनिंग रनवे ओनली फॉर 6 मंथ, 6 महीने से अगर ये एज इट इज कंडीशन में चलेंगे और अगर वो अपनी सेल्स नहीं बढ़ाएंगे, कॉस्ट कम नहीं करेंगे, so they'll face liquidity issues just after this 6 months. Okay, so that is the one, understood. So C will be right answer. जैसे हमने आपका जैसे यहाँ पे मेंशन भी है, करंट रेशियो सेम अप्लाई विद द करंट रेशियो आल्सो, ठीक है. सो 1.2 and 2 is generally considered optimal. A ratio of this is fine. Okay, so जैसे हमने आपका डिस्कशन किया. नेक्स्ट वन, so working capital ratio shows the ratio of asset to liabilities, how many time a company can pay off its current liabilities with its current assets. So current asset divided by current liabilities. A higher ratio means there is more cash in hand, while which is good things. A lower ratio means their cash is tighter, so they do not have the money, sufficient money, and after some time they might face some sort of लिक्विडिटी क्रंचेस, ठीक है. सो जनरली स्पीकिंग 1.2 to 2 आप अपनी बुक भी पढ़ेंगे तो वहां पे भी, बट एक्सेस भी आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों. तो ये आपका करंट रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑफ अ फर्म, ठीक है. सो जैसे आपका क्या क्या आता है इसमें, लाइक करंट एसेट्स ऑफ अ फर्म, ठीक है. सो विच आर द बेसिकली एंड फैक्टर्स एंड ऑल, ठीक है. तो करंट रेशियो में क्या आएगा, कैश एंड इक्विवेलेंट्स, इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स, अदर करंट एसेट लाइक इक्विवेलेंट्स एंड ऑल, ठीक है. So what are the factors which generally affect a company's working capital? बहुत important question है. What are the major factors which are going to affect a company's working capital? तो ये आपके हैं, ठीक है. जैसे नेचर ऑफ बिजनेस, जैसे आपका पब्लिक यूटिलिटी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी होता है रिकरिंग है, जैसे रेलवेज है, पहले आप किराया दे दो देन आप उस ट्रेन में बैठ पाते हो, ठीक है. ये क्या है, इनमें आपका करंट रेशियो का इशू नहीं आता बिकॉज दे आर जनरेटिंग मनी ऑन रियल टाइम बेसिस, ठीक है. साइज ऑफ बिजनेस, अगर आपका बड़ा साइज होगा तो मोर रिक्वायरमेंट, अगर छोटा साइज होगा तो कम रिक्वायरमेंट है. प्रोडक्शन पॉलिसी आपका, जैसे साइकिल मैंने आपको अभी बना करके दिया था, इफ द पॉलिसी इज कीप प्रोडक्शन स्टडी नॉट geared to peak and not peak nature of business, then there will be accumulation of inventories in off peak season, ठीक है. तो जैसे अगर आप सीजन के हिसाब से प्रोडक्शन नहीं करोगे, लेट्स से विंटर्स आपकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है तो आपको ऑब्वियसली यू हैव टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, यू कैन नॉट स्टडी थ्रू आउट द ईयर. समर्स में लेट्स से यू हैव लेस डिमांड, अगर आपने प्रोडक्शन सेम पेस पे रखा तो आपका समर्स में बहुत ज्यादा स्टॉक हो जाएगा, वो लिक्विडेट में प्रॉब्लम आएगा, ठीक है. देन वी हैव सीजनल, आपका जैसे हमने डिस्कस किया ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल साइकिल, जो मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बना करके दिया था, ठीक है. सो दीज आर द कंपोनेंट्स व्हिच जनरली कम्स अंडर दिस वन. नेक्स्ट वन गाइस, which financial option is best suited for a company with highly fluctuating short-term capital need and require flexibility in repayment? तो क्या सजेस्ट करोगे आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन? टर्म लोन, इट इज लॉन्ग टर्म, नो, ठीक है. ओवरड्राफ्ट अरेंजमेंट, यस वी कैन गो फॉर दिस. लेटर ऑफ क्रेडिट, नो. इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, नो. सो व्हाट शुड बी योर राइट अप्रोच इन दिस वन, ठीक है. एज अ बैंकर विच प्रोडक्ट यू विल गिव टू योर कस्टमर? आंसर होगा आपका ओवरड्राफ्ट अरेंजमेंट, ठीक है. सो ओवरड्राफ्ट अरेंजमेंट में क्या होता है, लेट्स से देयर इज अ एक्सवाईजी कंपनी, तो जिसके आपका ये जो रिसीवेबल्स उनमें फ्लक्चुएशंस है, सम टाइम दे रिक्वायर मनी और सम टाइम नॉट, ठीक है. सो फॉर दैट वन, बेस्ड ऑन देयर current credit worthiness, we allotted them a
ओवरड्राफ्ट लिमिट ऑफ 5 करोड़ रुपीज। तो ये 5 करोड़ रुपीज का लिमिट कैसा है, जब उनको रिक्वायरमेंट है तो इसमें से वो ड्रॉ डाउन कर सकते हैं, अगर नहीं है तो उसको आपका वैसे ही जब जितना अमाउंट ड्रॉ डाउन करेंगे उतने का ही ड्यू होगा, उसी हिसाब से पेमेंट होगा। तो ओवरड्राफ्ट एंड वन अनदर टूल इज XYZ दैट दे कैन अडॉप्ट, दैट इज कैश क्रेडिट। ठीक है, तो दूसरा हमारे पास क्या है, कैश क्रेडिट। तो दीज आर द टू टूल्स। ठीक है, एक तो आपका ओवरड्राफ्ट है, दूसरा आपका कैश क्रेडिट। ठीक है, सो कैश क्रेडिट इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। आई होप आप लोग समझते हैं। Overdraft is without collateral. It is directly, or it is we can say it is directly linked with the company's credit worthiness. ठीक है, but cash credit is backed by, or it is pledged or hypothecated against the hypothecation against the inventory, or pledged there is some kind of security which is deposited by company with bank. It can be any financial security. ठीक है, तो कैश क्रेडिट के केस में आपको क्या रखना पड़ता है, गिरवी रखना पड़ता है बैंक के पास। वो आपका हो सकता है आपने इन्वेंट्री रखा हो, या फिर आपका कहीं ना कहीं कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो, एफडी या अदर्स, बट इस केस में उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। बट दीज आर द टू सुटेबल टूल इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। अंडरस्टूड? So an overdraft arrangement allow the borrower to withdraw beyond the available balance in their current account up to a stipulated limit, जैसे 5 करोड़ हमने दिया। The key advantages is flexibility, as repayment can be made anytime during the period, making it suitable for business with unpredictable short-term financing needs. ठीक है, next one. So these are our current asset. ठीक है, current asset में क्या क्या आता है ये हमने काफी डिटेल में डिस्कस किए थे। ये चार्ट मैंने सेम रखा है जिससे आपको याद रहे। कैश इन इक्विवेलेंट, अकाउंट रिसीवेबल्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। दीज आर दी करंट एसेट। इनका इस्तेमाल हम लोग करेंगे टू पे ऑफ द करंट लायबिलिटीज। दीज आर द करंट लायबिलिटीज लाइक कैश, डिविडेंड पेबल्स, accrual expenses। ठीक है, we have short term note payables like जैसे bill of exchange, promissory notes। ठीक है, आपका अकाउंट्स पेबल्स, एनी डेट, इसके अलावा टैक्सेस एंड आपका अनअर्न्ड रेवेन्यूज। तो दीज आर ये ऑब्लिगेशंस हैं जिनको पे ऑफ करने के लिए वी यूज दीज पर्टिकुलर एसेट्स। ठीक है, नेक्स्ट वन गाइस, a company has been experiencing increasing days sales outstanding। ठीक है, so and a company has experiencing increasing days sales outstanding indicating slow collection of receivables। ठीक है, तो जनरली क्या हो रहा है आपका, अगर हम लोग डे सेल्स आउटस्टैंडिंग्स की बात करते हैं, इट इज काइंड ऑफ अ बिल्स रिसीवेबल साइकिल। ठीक है, जो रिसीवेबल साइकिल है कंपनी का, उससे जैसे क्रेडिट पे इट इज इक्वल टू क्रेडिट सेल। तो हम क्या करें, कंपनीज को, जैसे जो हमारे वेंडर्स हैं, वी आर सेलिंग देम ऑन क्रेडिट फॉर अ मंथ ऑफ लाइक विद अ टाइम ड्यूरेशन ऑफ 45 डेज और 30 डेज और 60 डेज, ऐसा आपका। तो ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट सेल आपकी हो रही है। ठीक है, तो अब जो हमारा कलेक्शन है, मतलब हमारा स्टॉक है, वो जल्दी जल्दी बाहर जा रहा है, बट जो पेमेंट्स वी आर गोइंग टू रिसीव दैट इज आफ्टर 45 डेज। ठीक है, which of the following strategies would be most effective in addressing this issue? क्या होगा आपका, एक्सटेंडिंग लॉन्गर क्रेडिट टर्म, नहीं, इससे तो प्रॉब्लम आपकी और बढ़ जाएगी। ठीक है, सो इट विल इंक्रीज योर प्रॉब्लम। ऑफरिंग अर्ली पेमेंट डिस्काउंट, दिस वी कैन डू। ठीक है, इंक्रीजिंग इन्वेंट्री लेबल्स, this is also one point, but to increase inventory you need more money, you have to purchase and all। so I'll not go with this one। delaying payment to suppliers, no। so this is the best fit in this particular situation, offering early payment discount। ठीक है, जैसे हमने बोला, let's say if your invoice size is 100 rupees, अगर आप इंस्टेंट पेमेंट करते हैं, वी विल गिव यू 5% डिस्काउंट, और इफ यू पे आफ्टर 45 डेज यू हैव टू पे 100 रुपीज इटसेल्फ। ठीक है, तो इसलिए ऐसे जो ऑफर्स आपकी कंपनी के होते हैं कैश बेसिस पे, या फिर आपका जो मतलब डिमांड और उससे जैसे बिल काइंड ऑफ जैसे हमने पढ़े थे, उसी तरीके से आपका ये काम कर रहा होता है। नेक्स्ट वन, which of the following statement about managing current liabilities इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो करंट लाइबिलिटीज को मैनेज करने का इनकरेक्ट तरीका कौन सा है? ठीक है, सो डिलेइंग सप्लायर पेमेंट कैन बी इंप्रूव, नो। accrued wages payable must be settled within 12 months, no। unearned revenue is liability that arise from receiving payment before the delivering a product or service। unearned revenue is a liability that arising from receive। a working capital ratio above 2 indicate the efficient use आपका, no। ठीक है,
तो क्या हो सकता है हमारे इसमें, डिलेइंग सप्लायर्स पेमेंट कैन, अच्छा ओके हाँ, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। अब देखो हमें क्या ढूंढना था इसमें, सॉरी आई हैव टू करेक्ट दिस वन। तो हमें क्या ढूंढना था इसमें, आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपका, एंड दिस इज इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट है ना, अब 2 लिखा है, ठीक है, क्या होना चाहिए था 1.222। ये बहुत आसान क्वेश्चन था एक्चुअली, अभी हम लोग इसको डिस्कस भी किए हैं, ठीक है। सो अ वर्किंग कैपिटल रेशियो अबव 2 may actually indicate inefficiency if it suggests that the company is holding excess cash or other short-term asset instead of investing in business growth opportunity. As I gave you an example, company A which is maintaining working capital ratio 1.5, B आपका 0.5, I hope you remember, and C was maintaining at 10। 1 रुपए की रिक्वायरमेंट थी, 10 रुपए आपका मेंटेन करें। नो, दे आर इनएफिशिएंट इन देयर कैश मैनेजमेंट। दिस इज द एग्जैक्ट सिचुएशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। Which of the following source of finance is most suitable for a company that need a short-term cash infusion and has a strong customer credit but lack immediate liquidity? तो क्या होगा आपका आंसर इसका, आपका following a source of finance in most suitable for a company that need a short-term cash infusion and has strong customer credit but lack immediate others। तो क्या होगा आपका, बिल डिस्काउंटिंग केस आपका हो सकता है, ओवरड्राफ्ट दिस, हाँ, तो क्या होगा इस केस में आपका बिल डिस्काउंटिंग, ठीक है। नाउ आई होप यू रिमेंबर द बिल डिस्काउंटिंग केस, ठीक है। सो बिल डिस्काउंटिंग में हम लोग क्या करते हैं, लाइक लेट्स से कस्टमर के द्वारा जो बिल आपका दिया गया, जैसे लेट्स से योर कस्टमर, जिसने आपको एक हमने कस्टमर के ऊपर ड्रॉ किया आपका एक बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज, जहां पे हमने उसको ऑर्डर दिया, वी लाइक 2 month लेटर आई ऑर्डर टू पे मी और माई ऑर्डर वर्थ रुपीज 1 crore फॉर वैल्यू रिसीव, ठीक है। सो वी रिसीव दिस पर्टिकुलर वन फ्रॉम द कस्टमर, नाउ लाइक इट इज साइंड बाय द कस्टमर इटसेल्फ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बिल डिस्काउंटिंग में वी विल अपलोड दिस पर्टिकुलर बिल on the TREDS platform, ठीक है, एंड पार्टीज विल पार्टिसिपेट इन दिस वन, ठीक है। तो जो भी आपका इसको लेगा, लेट्स से वी हमने 2% के डिस्काउंट पे या 5% के डिस्काउंट पे इसको सेल आउट किया, सो वी कैन मीट आवर शॉर्ट टर्म कैश रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। सो बिल डिस्काउंटिंग अप्लाउ ए कंपनी रिसीव इमीडिएट कैश सेलिंग इट्स रिसीवेबल्स, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज, टू अ बैंक एट अ डिस्काउंट, since the company has strong customer credit, this method ensure liquidity without taking an additional debt। Understood? समझ में आया ना, बहुत आसान सा केस, कि हमने कस्टमर को 1 करोड़ की सेल की है, 2 करोड़ की सेल की है, 1 करोड़ की, ठीक है। दैट अमाउंट वी आर गोइंग टू रिसीव आफ्टर 45 days, द रिसीवेबल पीरियड आपका, ठीक है। सो व्हाट वी डिड, वी अप्रोचेस टू आवर बैंक कि सर ये आपका पेमेंट आएगा, ठीक है, एंड वी ट्रांसफरिंग दिस ओनरशिप एंडोर्समेंट टू योर बैंक, you just pay us immediate money and we will give you 5% discount on overall bill। मतलब आप 5 लाख आप रख लीजिए, जो आपको मिलेगा आप हमें 95 लाख रुपीस दे दीजिए एज ऑफ नाउ, ठीक है, करंट आपका, दैट इज द अरेंजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट वन, सो दीज आर द बेसिक, दीज आर द मेजर सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग वर्किंग कैपिटल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्ट, और हमने काफी डिटेल में इनको डिस्कस किया, जैसे लोन अरेंजमेंट, सो वी कैन एंटर इनटू अ लोन अरेंजमेंट विद एनी बैंक, ये पहला, टर्म लोन ले सकते हैं। दूसरा ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट, वी जस्ट डिस्कस अबाउट दिस वन। बिल परचेज एंड बिल डिस्काउंट, वी जस्ट प्रैक्टिस दिस। लेटर ऑफ क्रेडिट, ठीक है, एलसी आपका क्या होता है, बेसिकली दिस इज जनरली यूज्ड इन इंटरनेशनल ट्रेड, तो जहां पे हमारा जो, जैसे लेट्स से आर कस्टमर इज फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, यूएस से आपका है, तो वहां पे एलसी आपका एक डॉक्यूमेंट जो हमारी पेमेंट को सिक्योर करता है, और उस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे वी कैन टेक लोन ऑल्सो, ठीक है। तो बेसिकली जहां पे हम लोग एज ए सेलर वी विल बी द बेनिफिशियरी। नोट लैंडिंग सिस्टम, ठीक है, आपका जैसे नोट लैंडिंग सिस्टम आपका, जैसे जो डिफरेंट डिफरेंट आपका, जैसे प्रोमिसरी नोट है या अदर्स है, दे जनरली comes under this one। So overdraft आपका, borrower is allowed to overdraw on his current account, ठीक है। दूसरा कैश क्रेडिट क्या होता है, similar to overdraft arrangement, in this borrower can draw up to a stipulated limit based on security margin, usually it is hypothecated, बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रखें, ठीक है। बिल परचेज और डिस्काउंट, ठीक है, परचेज और डिस्काउंट बिल जनरेटेड ड्यूरिंग द क्रेडिट सेल ऑफ द गुड, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन में, ठीक है। Letter of credit, bank help its customer to obtain credit from his suppliers. So bank open a letter of credit in favor of suppliers, ठीक है, in this particular case। The next one is intercorporate deposit can be, जैसे आपका होता है ना, जैसे कमर्शियल पेपर टाइप, जैसे
not exactly commercial paper, but that is the kind of talk bank to bank आपका, sorry, company to company finance आपका, ठीक है. So one company make a deposit with the another one, ठीक है. So that is only one. चलो अगला, how working capital calculated? So long term asset, no. Current asset minus current liabilities. So how we calculate working capital or net working capital? Current asset minus current liabilities. So as simple, ठीक है. Which of the following is or are a non-fund based limit? Non-fund based मतलब like in your working capital company they can avail non-fund based. तो क्या हो सकता है? Cash credit no. आपका मतलब this is fund based. आपका ओवरड्राफ्ट फंड बेस. बैंक गारंटी आपका, ठीक है, बैंक गारंटी जैसे आपका लेटर ऑफ क्रेडिट. सो दिस इज नॉन फंड बेस, ठीक है. इसका काम कैसे होता है? लेट्स से देयर इज अ बायर, ठीक है, फ्रॉम इंडिया, जो आपका यूएस से, आपका सेलर इज फ्रॉम यूएस, ठीक है. लेट्स से दे आर बाइंग सम, दे आर इंपोर्टिंग 10 मिलियन यूएस डॉलर गुड्स फ्रॉम यूएस, ठीक है. तो क्या करेगा? दिस बायर विल अप्रोच टू योर बैंक, ठीक है, जैसे आपका एसबीआई इसको अप्रोच करेगा. On behalf of this buyer, SBI will issue LC, letter of credit, ये आपका issuing बैंक हो जाएगा. And जो इसका आपका जो मतलब SBI will issue this LC on with the help of their advising bank in US. और उसके हिसाब से जो आपका सेलर है उसको मेक श्योर करेंगे कि इफ यू फुलफिल दिस पर्टिकुलर इनवॉइस या जो भी हमारा सेल एग्रीमेंट है, वी विल, दिस बैंक विल मेक पेमेंट टू, बैंक इज प्रोवाइडिंग अ गारंटी टू दिस सेलर कि वी विल मेक द पेमेंट इवन इफ दिस बायर फेल. तो ऐसी चीजों में भी आपका ये हमें हेल्प कर रहा था. गारंटी वर्क जहां पे आपका बायर को कैश नहीं मिल रहा बट उस चीज को खरीदने के लिए बैंक इज प्रोवाइडिंग गारंटी, ठीक है. सो दैट इज द रूट, ठीक है. मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? बायर इज नॉट गेटिंग दैट 10 मिलियन फ्रॉम एसबीआई, ठीक है. एसबीआई इज गिविंग प्रॉमिस कि आप अगर आप ये जो सेल एग्रीमेंट है इसको फुलफिल करते हैं तो हम मेक श्योर करते हैं कि आपको ये पेमेंट मिलेगी. और ये किसके थ्रू मेक श्योर करेगा? अपने करस्पॉन्डेंट बैंक के थ्रू, दैट इज एडवाइजिंग बैंक. और फिर इसका जो नॉमिनेटेड बैंक होगा वो एडवाइजिंग बैंक को कनेक्ट करेगा. जैसे ही सप्लाई हो जाएगा, सेल हो जाएगी, तो वो आपका डॉक्यूमेंट्स दे देगा किसको? नॉमिनेटेड बैंक, वो एडवाइजिंग बैंक को, वो इसको. जैसे इसके बाद डॉक्यूमेंट्स आएंगे, दे विल मेक पेमेंट टू दिस, ठीक है. और फिर ये इससे पेमेंट आपका ले लेगा. इस तरीके से जो चीजें आपका यहाँ पे चल रही होती है, ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड में आपका टाइम लगता है, ठीक है. Which of the following is current liability? कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिल जाते हैं, ठीक है. सो सैलरीज पेबल्स आर करंट लाइबिलिटीज, ठीक है. आसान है, अब तो ये तो सबको याद हो गया होगा. चलो, which of the following is not a current asset? ठीक है, इनमें से करंट एसेट कौन सा नहीं है? ट्रेडमार्क. ट्रेडमार्क इज बेसिकली योर नॉन करंट एसेट, ठीक है. प्रॉपर्टी, प्लांट्स, इक्विपमेंट्स, गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, these all comes under non current asset, intangible non current asset, ठीक है. Next one, consider the following given information. Current asset 1,20,000, short term finance or that is equal to current liabilities 60,000. So आपका working capital of the firm is how much? 60,000. कैसे? Current asset minus current liabilities, ठीक है, ये आपका हो गया. Also state that what is the portion of a total current asset that bankers in India expected to कंपनीज टू हैव एट नेट वर्किंग कैपिटल. तो कितना होना चाहिए? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, ठीक है. तो ये कितना होना चाहिए आपका? एज पर टेंडेंट कमिटी इट इज 20%, ठीक है. डाउन साइड 20%, ठीक है, 25%, सॉरी, ठीक है. सो आपका सेकंड शुड बी राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है. सो बैंकर इन इंडिया एक्सपेक्ट दिस पोर्शन शुड बी 25%. मतलब उसका जितना करंट एसेट जो फाइनेंसिंग हो रही है, जितना भी करंट एसेट है उसका 25%. लाइक जैसे आपका सपोज दैट 1 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, तो इसमें से 1 करोड़ में से आपका 25 लैक्स किसके होने चाहिए? कंपनी के होने चाहिए. रेस्ट 75% कैन बी फाइनेंस्ड बाय द बैंक इटसेल्फ, ठीक है. ये आपका डाउन साइड जो रखा गया है, ठीक है. सो प्लीज डू रिमेंबर दिस वन आल्सो. वर्किंग साइकिल इज आल्सो नोन एज, क्या करेंगे हम इसको? आपका ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है. ऑपरेटिंग साइकिल का चार्ट हमने आपका समझा था. कैश, ठीक है, कैश से आपका क्या बना था? आपका इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल, देन फिनिश्ड गुड, देन रिसीवेबल्स, फिर कैश, ठीक है. दैट इज वर्किंग साइकिल. व्हेन स्टॉक हाइपोथिकेटेड अगेंस्ट फंड बेस्ड फैसिलिटी, तो क्या बोलेंगे इसको? आपका यहाँ पे आपका ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट. तो क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? कैश क्रेडिट, ठीक है. नॉट ओवरड्राफ्ट, इट इज कैश क्रेडिट. हाइपोथिकेशन मींस लोन अगेंस्ट मूवेबल एसेट, ठीक है. और इट कैन बी प्लेस आल्सो, लोन अगेंस्ट फाइनेंशियल सिक्योरिटी, राइट. which of the following is not a feature of term loan? टर्म लोन का फीचर कौन सा नहीं है?
Term loan is used for expansion of business. True. Term loan generally sanctioned for medium to long term. Again true. Term loan use day to day operational expenses. No. इसके लिए हम working capital loan, इसके लिए आपका क्या होगा, वर्किंग कैपिटल लोन, ठीक है, नॉट टर्म लोन. वर्किंग कैपिटल लोन विच इंक्लूड कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट एंड अदर्स. ठीक है. फिक्स एसेट कैन बी एक्वायर्ड ट्रू. तो सी आपका जो करेक्ट आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए. ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं. शिफोनिंग ऑफ फंड्स. ठीक है, देयर इज वन टर्म कॉल्ड शिफोनिंग. ये बहुत होता है कॉर्पोरेट में आपका. शिफोनिंग इज बेसिकली नोन एज डाइवर्जन ऑफ फंड्स. ठीक है, लेट्स से we have taken loan on the basis of cash credit. ठीक है, a company XYZ, they have taken cash credit from ABC bank, let's say 5 crore rupees. The purpose was working capital, but now they are using that money for personal use, personal purpose, or they withdraw money and they invested in stock market. So these kind of things are generally known as chiffoning of funds, diversion. ठीक है, we are not following the core purpose for which we have taken that cash credit or overdraft. Okay? So funds are used effectively for welfare of the employee. Funds are used for related operations. No. Funds are used for unrelated purpose and operation of the business. Okay? So C without any doubt will be right answer. Okay? So diversion of funds. It means diversion of funds, especially in case where stock are hypothecated in to cash credit limit and funds are utilized for unrelated purpose other than business, as I gave you an example of personal use and all. Okay, next one. Which of the following asset indicate the current asset for working capital? करंट एसेट में क्या क्या आएगा इसमें बताओ जरा. कैश फिक्स एसेट नो. ठीक है, आपका इन्वेंट्री, कैश, डेटर्स, ओके, मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट, कैश, रिसीवेबल्स. ठीक है, यहाँ पे डेटर्स है. ठीक है, आपका सी मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट, कैश एंड रिसीवेबल्स. शेयर नो. तो क्या होगा आपका आंसर? दीज आर द कैश. ठीक है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज विच कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश. कैश आपका ऑलरेडी, और रिसीवेबल्स, बिल्स रिसीवेबल्स जो भी हमारे होंगे. ठीक है, सो मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट, कैश एंड डेटर. हमारा कौन सा था? रिसीव. अच्छा ओके, एक्चुअली दिस क्वेश्चन इज लाइक डेटर्स आपका इस तरीके से बना है. ठीक है, तो दोनों ही आपके सही हो जाएंगे इसमें. ठीक है, bills receivables also part of this particular one. Sorry guys. ठीक है, next one. XYZ Limited has made sufficient good investment in their business. In spite of heavy investment and good returns, they are facing liquidity crunch to pay salaries, electricity bill, purchase of raw material. As a banker, what kind of facility you will offer to XYZ? तो इसका मतलब लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी साइड दिस कंपनी इज फाइन, बट लिक्विडिटी में आपका इसका प्रॉब्लम है. सो वी विल ऑफर द वर्किंग कैपिटल फंडिंग्स. ठीक है, तो आपका टर्म लोन, बैंक गारंटी नो. तो हम लोग हमारे लिए जो आपका इसके लिए अप्रोप्रिएट होगा, दे नीड वर्किंग कैपिटल लोन्स आपका इन दिस पर्टिकुलर केस. ओके, सो दिस इज गाइड. सो ये हमारा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट बहुत छोटा सा यूनिट है, ऑल अराउंड दी करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटीज मैनेजमेंट. और कहीं ना कहीं हाफ मार्क्स टू 1 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन रहता है. ठीक है, अपर साइड 1 मार्क्स, यू विल डेफिनेटली फेस 1 क्वेश्चन, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज फॉर हाफ मार्क्स. ठीक है, तो इस तरीके से कैसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया. अगर कोई डाउट है आप लोगों का, आप मुझे यहाँ पे पिंग कर सकते हैं. ठीक है, सो और अगर आपका कोई और भी हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है, सो यू कैन कनेक्ट मी थ्रू दी टेलीग्राम. द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एज वेल एज if you are facing any challenges in your preparation, so just let me know. I'll try to help you out. Okay, आज के लिए इतना ही करते हैं. This is it from my side. I'll see you tomorrow at same time with the final unit of our AFM module C, that is derivative, which is again with dual benefit. You will get same question in IE and IFS also, as well as in AFM. So we will discuss that particular one in detail, but I request to all of you guys, please do watch that concept video. We have spent 1 hour 40 minutes on the derivative concept video. That is the most important for all of you. So just go through that particular one. Believe me, you will build your solid concept. Okay, so this is it. Thank you for joining this session. Bye bye, take care all, have a nice day. Thank you.